So someone has requested that the video is expected. Yes, we will share a video with you. Don't worry on this. This video will be available on my YouTube channel. We'll share the link with you. Okay, so let's get started. So point is that email has a larger reach. Compared to any other medium, it can reach up to a person at any given point of time. Second thing, this is a platform which allows you to do one-to-one conversation. So someone has asked, can we connect from PC? Yes, you can connect from PC as well. So I'll get onto the subject very soon now. So email marketing, because this is something which we had started as a first thing when we wanted to do digital. So पहले phone हुआ करता था, फिर SMS आ गया. So I'll use a language of English and Hindi both, because I had been given a feedback कि English हिंदी के साथ में लोगों को collaborate और समझने में easy होती है. So why email marketing? Because whosoever is online has an active email address. Even if someone who is not online and using a smartphone needs to be on an email, which means that the entire population of the country or of the globe who's accessing internet and who is using a mobile phone has an email addresses. So you can understand कि इसका vastness कितना ज़्यादा है email marketing. So that's one of the reason why email marketing plays very critical role. So बात ये आती है कि what is email marketing? Does sending an email to customer is email marketing? Does someone gives you a visiting card और आप उसको email करते हो, वो email marketing? Those are part and parcel of the email marketing. But by and large, we'll discuss about how do you set up an email marketing in your organization as a marketing avenue. तो आज आप टेली मार्केटिंग करते होंगे, आज आप कोल्ड कॉलिंग करते होंगे, आज आप एग्जीबिशंस लगाते होंगे, या फिर आपके यहाँ पे जो भी अलग अलग तरीके की चीजें होगी, इन सब से एट द एंड ऑफ द डे हम जो चीज को जनरेट करते हैं वो है ईमेल का डेटा. विजिटिंग कार्ड में आपका मोबाइल का डेटा होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, ईमेल होता है. मोबाइल इज नॉट समथिंग कि अगर आपको लगता है मेरे को आज 5000 लोगों को कॉल करना है, यू कैन नॉट डू इट विथ मोबाइल फोन्स. ओके, एसएमएस अगर आप करोगे तो यू डोंट नो कि उसका रिस्पॉन्स रेट क्या होगा. बट ईमेल इज अ प्रोफेशनल अप्रोच. ये हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में यूज करते हैं, पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं. प्रोफेशनली ईमेल 75% यूज किया जाता है, पर्सनली ईमेल 25% यूज किया जाता है. ओके, सो ईमेल मार्केटिंग इज नथिंग बट ईमेल मार्केटिंग इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग, अ कमर्शियल मैसेज टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिससे आप अपनी लॉयल्टी बिल्ड करना चाहते हो, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो, ब्रांड का अवेयरनेस करना चाहते हो. सो आई विल रिपीट इट अगेन, जहां से आप अपनी लॉयल्टी बिल्ड करते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेगुलर ईमेल कम्युनिकेशन जहां पे मेरे पास आपका ईमेल एड्रेस है, मैं आपको ईमेल कर रहा हूं हाय हेलो वाला. दैट्स फेयरली ओके. दैट्स एन ईमेल व्हिच हैपेंस टू योर sets of the people whom you know. Okay, and then there you have a permission to send an email because it's expected to do that kind of a professional transaction. But email marketing आपका loyalty build करता है, provided you use it in a right format. कई सारे लोग उठा करके, so we will discuss upon couple of good and bad practices also of the email marketing. कई सारे लोगों के पास में email होता है और email के होते होते, just give me a moment. So someone has just requested to make it live on a Facebook. Just a minute. I just forgot on that particular element. Give me a moment. तो ईमेल मार्केटिंग का जो टूल होता है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि आपके पास में जो डेटाबेसेस है, इन डेटाबेस को यूज करके आप अपना ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को कैसे सेट कर सकते हो. हाइजीन्स आपको क्या रखना है. Just a minute. So we are just live on a Facebook as well because quite a lot of people are following me up on Facebook. Okay, so I will resume a slideshow. Just give me a minute on this. It's getting broadcasted. Absolutely sorry from my side. Yeah, so you are able to see the screen, right? Screen is visible to you. Screen is visible to you, right? Just ping me yes if you can see the screen. Perfectly all right. Perfect. Thank you. Okay, so email marketing we use as a marketing channel to communicate about our brand, about our product, about our services, which we will cover up more in detail eventually. So
we all as a human being, we had started communication. Okay, मैंने कुछ चीजों को डॉक्यूमेंट किया. We don't have to look up at it. So initially communication was human to human. एक जगह से आदमी जाके दूसरी जगह पे अपना मैसेज पहुंचा देता था. फिर बाद में हम लोगों ने सुना था कि लोग कबूतर यूज करते थे कम्युनिकेशन यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए, because human used to take longer time. Then evolution of later आ गया, फिर फोन आ गया, फिर फैक्स आ गया, फिर टेक्स्ट आ गया, and then there have been multiple avenues of the communication which had started happening up. So communication was always there right from a day one we were born. पहले हम 1-to-1 communication नजदीक में करते थे, फिर हम लोग थोड़ा जा जाके करते थे, फिर अलग अलग मोड से we started with a lot of digital engagement with the thing. So communication was always there, let it be yesterday, आज और कल. So it was there yesterday, it is there today, it's going to be there tomorrow. But today and tomorrow's communications are going to be very relevant because of this post-COVID situation. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कम्युनिकेशन ऑफ हमको सीखना होगा सोशल सेलिंग कैसे करें, सोशल कन्वर्सेशन कैसे करें, सोशल मैसेजिंग कैसे करें और सोशल इन्फ्लुएंसिंग कैसे करें. तो ईमेल मार्केटिंग जो एज अ कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एन सोशल सेलिंग, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजिटल सेलिंग. ओके, और बेस्ट पार्ट ये होता है कि यू आर टॉकिंग टू द पीपल हुम यू नो. सो बी अश्योर्ड, चाहे ह्यूमन का कम्युनिकेशन बंद हो गया हो यहां से वहां जाने का, या पिजन बंद हो गए, लेटर हमने लिखा नहीं है, फैक्स हम करते नहीं है, पेजर बचा नहीं है, तो टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप के साथ में ईमेल प्लेज वेरी वेरी क्रिटिकल रोल. बिकॉज यू कैन नॉट यूज एसएमएस फॉर बल्क ईमेलिंग, फॉर बल्क मैसेजिंग और प्रमोशन, बिकॉज इट जनरली गेट इग्नोर्ड. आप व्हाट्सएप पे अपने सेट्स ऑफ ऑडियंसेस को जब कम्युनिकेशन करते हो, and if you keep doing it up for more and more people, so there are chances कि WhatsApp आपको ब्लॉक कर सकता है. and it also looks very bad कि आप अपने कम्युनिकेशन को, अपने कनेक्शंस को, अपने कस्टमर्स को बार बार सेल्स का मैसेज उनके पर्सनल रियल एस्टेट पे कर रहे हैं या पर्सनल इसमें कर रहे हैं, बिकॉज इट लुक्स वेरी अनोइंग. ओके, सो यू डोंट वांट कि कोई भी आपको उठे सुठे ब्रोशर बेचता रहे, प्रोडक्ट बेचता रहे, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट. लेकिन यू आर एब्सोल्युटली ओके जब आप एक मेल ओपन करते हो दिन में, so you don't have lots of complaints against those particular people because you are okay with absorbing those kind of content. Okay, कई लोगों के लिए अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है, कई लोगों के लिए इंफॉर्मेशन होता है, कई लोगों के लिए केस स्टडीज होती है, कई लोगों के लिए अलग अलग तरीके. सो ईमेल मार्केटिंग बाय एंड लार्ज इज प्रीटी मच एक्सेप्टेड काइंड ऑफ एन वे ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. इफ समवन डजंट लाइक इट, ही कैन ऑलवेज अनसब्सक्राइब इट. तो हम बात करेंगे कि अनसब्सक्रिप्शन रेट को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए. So be assured, email marketing was there, is there, and is going to be there. It's not going to get eliminated. तो जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो हम बेसिक्स के साथ बात करेंगे. ईमेल मार्केटिंग यूज करने के लिए सबसे पहले आपको लगता है डोमेन नेम. अगर आप अपने कम्युनिकेशन अपने कंपनी के नाम पे करते हो तो, अदरवाइज अगर आपका जीमेल आईडी भी है तो उससे भी आप कर सकते हो. बट @gmail जब हम बात करते हैं, इट्स नथिंग बट डोमेन. सो इन केस इफ देयर इज नो डोमेन, इट कैन नॉट बी एन ईमेल. सो @ के बाद में जो होता है वो होता है डोमेन नेम, और @ के पहले जो होता है वो होता है आपका यूजर आईडी. तो ईमेल मार्केटिंग करने के लिए एक डोमेन की जरूरत पड़ती है और एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है. सो जस्ट बाय हैविंग अ डोमेन यू कैन नॉट डू ईमेल मार्केटिंग. ओके, और हैविंग एन ईमेल डजंट मीन यू विल बी एबल टू डू मेलिंग, बिकॉज ये चीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ता है. तो ये चीज करने के लिए सेंडिंग की टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है जिसका नाम होता है SMTP. ओके, सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, हमारे दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है. इट्स कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर का मैसेज को जो डिलीवरी करता है चैनल. ओके, तो उसको SMTP कैसे, जैसे वोडाफोन से अगर आइडिया में कोई फोन लगाता है, आइडिया से जियो में लगाता है, तो हम उसको कैरियर बोलते हैं. उसी तरीके से जब ईमेल ट्रांजिट होता है तो उसको SMTP कहा जाता है, जिसको हम लोग दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, या उसको हम बात कर सकते हैं दे आर योर डिलीवरी पार्टनर्स. सो हाउ डज इट वर्क. आपका एक ईमेल आईडी होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरा ईमेल आईडी है ashish@icap.co.in. तो ये मेरा रजिस्टर्ड आईडी हो गया है, एंड विच इज ग्लोबली वन ओनली. जैसे आपका मोबाइल फोन कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, उसी तरीके से आपका ईमेल आईडी भी किसी और के पास में रेप्लिकेट नहीं हो सकता है. तो दैट इज कॉल्ड अ सेंडर आईडी. दूसरा चीज होता है कि जब आप ईमेल भेजते हो, यू डोंट वांट टू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम ashish@icap.co.in. यू वांट टू अंडरस्टैंड हु एम आई. तो उसको एक लेबलिंग दिया जाता है विच इज कॉल्ड आशीष डाल दिया,
जिसका ईमेल आईडी है ashish@icap.co.in। इसका अगर सिंपल एग्जांपल अगर आपको समझना हो तो आप इसको इस तरीके से देखो, एक मोबाइल फोन नंबर और एक मोबाइल फोन नंबर का नाम। ओके, नंबर से आप कोई चीज को रिलेट नहीं कर पाते हो, लेकिन जब नंबर और नाम होता है तो आप जैसे ही जाके नाम को क्लिक करते हो तो वो कॉल लग जाता है। उसी तरीके से आपके ईमेल के अंदर में भी सेंडर आईडी और सेंडर का नेम होता है। दूसरा, जब आप ईमेल यूज करते हो, जब कभी भी आपको ईमेल आती है तो सबसे पहले जो चीज दिखती है वो दिखता है कि भेजने वाले का नाम, ईमेल आईडी और सब्जेक्ट क्या है। तो ये ईमेल मार्केटिंग में आप लोगों का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज सब्जेक्ट इज लाइक अ टाइटल ऑफ अ बुक। इफ अ टाइटल ऑफ अ बुक इज गुड, पीपल विल बाय द बुक एंड पीपल विल रीड द बुक। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन टाइटल बुक की अच्छी नहीं है तो पीपल विल नॉट लाइक टू ओपन इट ऑल्सो। तो अगर आप थोड़ा सा रिलेट करोगे, आपको भी जब एक स्पैम मेल आते हैं, प्रमोशन मेल आते हैं, न्यूज लेटर आते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हो कि ये जो मेल आया है ये नोन सोर्स से आया कि अननोन सोर्स से आया, उसका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद में आप एक्शन लेते हो कि ये मेल को मेरे को देखना है। तो जब हम देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओपन रेट या रिसीवर डेटा। ओके, तो जब हमको ईमेल मार्केटिंग करना होता है तो आपका नाम है, आपका सेंडर नेम है, आपके पास सब्जेक्ट है, और इसके बाद में लगता है आपको कि किसको भेजना है। तो वो रिसीवर, तो जिसको हम बोलते हैं कि ईमेल की लिस्ट, कि जिनको आपको ईमेल, अगर आपके पास मेल सब है लेकिन अगर डेटा ही नहीं है तो आप मेल भेजोगे किसको। तो दैट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जस्ट अ मिनट, ओके, और उसके बाद में आता है कि आपको डिलीवरी करवानी है। तो डिलीवरी के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि डिलीवरी पार्टनर लगता है, विच मीन्स दैट जब तक के आपके ईमेल के अंदर में बाहर जाने का रास्ता, जिसको हम एसएमटीपी बोलते हैं, वो कॉन्फ़िगर नहीं है, आपका ईमेल आपके कंप्यूटर से, आपके मोबाइल से, आपके ईमेल मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी या टूल से निकल नहीं सकता है। तो इसके लिए बहुत रिलायबल डिलीवरी चाहिए। जैसे हमको अगर कोई कुरियर एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो हम एक रिलायबल कुरियर कंपनी देखते हैं। उसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि we should have a very reliable delivery partner, because you want to send an email to hundreds, 1000, 10,000, 50,000 and 1 lakhs people. So जब आपको अपना communication is required to be sent across to so many number of people, so it's very important कि you should have a very stronger delivery partner. We will discuss on that as well कि how to select a delivery partner. Okay, दूसरी चीज होती है कि if you try to do something without measuring, तो एक्टिविटी को आप मेजर नहीं कर पाते हो। तो यू ऑल्सो रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर मान लो आज मैंने अपना एक ईमेल 5000 लोगों को भेजा, ओके, तो आई डोंट नो कितने लोगों को पहुंचा, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखने के बाद में उसको क्लिक किया, कितने लोगों ने देखने के बाद में उसको रिप्लाई किया। तो ये जो डिलीवरी पार्टनर होता है उसके साथ में जब तक एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, तो अगेन इट्स लाइक फाइटिंग शूटिंग इन द डार्क। मतलब पूरा डार्क है, आगे आप गोलियां चला रहे हो, तो यू डोंट नो वेयर इट्स हिटिंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्गर एमआईएस सिस्टम। सो टेक एन एग्जांपल, जब हम मार्केटिंग भी करते हैं, जब तक कि हम वो मार्केटिंग के डेटा को रिव्यू नहीं करते, वी कैन नॉट टेक एनी इंटेलिजेंट डिसीजन। सो सिमिलरली विद ईमेल मार्केटिंग देयर हैज टू बी स्ट्रॉन्गर रिपोर्टिंग सिस्टम आल्सो। और रिपोर्टिंग सिस्टम हमको क्या बोलना चाहिए, इट शुड टेल अस व्हाट हैड बीन द डिलीवरी रेट, कि कितने लोगों को मैंने मेल भेजा, ये मेल पहले तो था लेकिन अभी नहीं है। तो वी कॉल इट अ बाउंस ईमेल। मतलब you probably had the person's email but that has changed, that person has moved from one company to another company, or this company has deleted the email, so you don't want to send an email to, because it doesn't exist only. So if you remember, when you call up someone and you get a message, आप जिस व्यक्ति को पहुंचने की कोशिश कर रहे हो वो नंबर doesn't exist. Okay, so that doesn't exist means a bounce, which means that you need to change. दूसरा चीज होता है कि रिपोर्ट में ये भी एक आपको you have to appreciate one thing, if someone doesn't want to receive an email, there should be a unsubscription button also, because आप किसी को जबरदस्ती ईमेल नहीं भेजना चाहते हो, आप पहली बार भेजिए, okay, because that is in your control. But if other person says no, I don't want to receive an email, he can put up a legal claim on you. इंडिया में हालांकि इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, लेकिन अगर आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह अगर जाते हो तो इट्स नॉट अलाउड टू सेंड एन अनसॉलिसिटेड ईमेल विदाउट द परमिशन ऑफ द पीपल। तो आपको एक ईमेल कैंपेन को सक्सेसफुल करने के लिए एक अनसब्सक्रिप्शन का बटन होना बहुत जरूरी है।
अगर आपको भी मेरा ईमेल आया होगा तो अगर आप देखोगे उसके फुटर में unsubscription because I love your privacy. So every good email marketing list should always have an unsubscription list. आपके जो भी क्वेरीज होगी आप लिख लीजिए, आप उसको चैट पे डाल दीजिए. गुंजन फ्रॉम माय टीम इज एनी विच इज अवेलेबल, वो कोलेक्ट करेगी. वंस वी आर डन विद द सेशन वी विल ट्राई टू आंसर दैट एज फार एज पॉसिबल. तो जब हम बात करते हैं कि ईमेल मैसेज, ओके, तो ईमेल मैसेज हम दो तरीके के लोगों को भेजते हैं. एक तो हम नोन ऑडियंसेस को भेजते हैं. नोन ऑडियंस मतलब माय कस्टमर, माय टीम, माय फ्रेंड, माय रेगुलर वेंडर, विच आई कॉल इट रेगुलर ऑडियंस. जो उनको आप रेगुलर, जो आपको जानते हैं आप उनको जानते हो, ओके. तो उनको आप अपने रेगुलर मैसेज भेजते हो, उनको आप अपने अपडेट्स भेजते हो, उनको आप ट्रांजैक्शन मैसेज भेजते हो कि सर आपका इनवॉइस जनरेट हो गया, आपका माल लोड हो गया, आपका प्रोडक्ट डिलीवरी हो गया, आपका पेमेंट आ गया, जिसको ट्रांजैक्शन मैसेज बोलते हैं, विच इज वेरी प्राइवेट बिटवीन टू ऑफ द पीपल. बट दीज आर ऑल योर नोन ऑडियंसेस. आप इंट्रोडक्टरी भेज सकते हो बिकॉज ही इज ओके विथ एक्सेप्टिंग, बिकॉज आपका उनके साथ में कम्युनिकेशन कंटिन्यू बेसिस पे चलता रहता है. सो इज एब्सोल्युटली ओके विथ एक्सेप्टिंग योर इंट्रोडक्टरी कम्युनिकेशन. आप उसके साथ फॉलो अप कर सकते हो. आपने उसको प्रपोजल भेजा है, आपने उनको पेमेंट भेजना है या जो भी है, तो विथ योर नोन ऑडियंसेस यू डू लॉट्स ऑफ फॉलो अप मैसेज. आप उनको मार्केटिंग के कम्युनिकेशन करते हो. दूसरा चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ईमेल मार्केटिंग के लिए, कि वी नीड टू रीच आउट टू द न्यू ऑडियंसेस. अगर मैं अपने वही ऑडियंसेस को बार बार वही कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो वो डेटा का रिलेवेंस कम होता चला जाएगा. तो ईमेल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आर यू ऑल्सो जनरेटिंग अ न्यू लीड्स, न्यू डेटाबेसेस. अगर आपका डेटाबेस जनरेट नहीं हो रहा है, इफ यू आर नॉट एडिंग अप ऑन योर न्यू databases frequently, what's going to happen is आपका lead generation, the entire objective of today's seminar is to do email marketing. और जब हम marketing की बात करते हैं, marketing doesn't gives me a lead, doesn't gives me a visibility, then marketing doesn't exist. Okay, so with prospective audiences you expect a lead to be generation. आप उनके साथ में information share करना चाहते हो. Okay, they probably don't know you, they had seen you somewhere or you had probably got the data from different sources. आप कोई एसोसिएशन के मेंबर होंगे, वो भी एसोसिएशन का मेंबर होंगे, आप कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे. तो दे आर मल्टीपल थिंग. वो आपका सोशल कनेक्ट होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, या आपका फैमिली होगा, आपका फ्रेंड होगा. तो यू वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिकॉज बिजनेसेस हैपेंस विद लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस आल्सो. सो शायद मेरे को आपके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, but someone else requires a product. तो keeping that in is important कि वो शेयर भी करें. दूसरी चीज, आप इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, आप इनको अपने नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज लॉन्च करवाना चाहते हो, आप इनके साथ में अपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना चाहते हो. सो दीज आर ऑल द एवेन्यूज. और जब आप ये सारी चीज करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलता है कि एक रिकॉल क्रिएशन मिलता है. मतलब कि आप उन कस्टमर के बीच में टाइम टू टाइम अलग अलग कम्युनिकेशन की वजह से रिकॉल में रखते हैं. ईमेल मार्केटिंग में ये भी देखा गया है, शायद आपने आज एक ईमेल भेजा, उसका इंक्वायरी 2 महीने बाद आता है. मेनी टाइम्स पीपल माइट सी योर कम्युनिकेशन बट विल पार्क द ईमेल. वो बोलेगा जब जरूरत होगी तब मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास में, ओके. या फिर वो ईमेल को किसी और डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है कि प्लीज, सो इफ योर ईमेल गोज डाउन टू सम डिफरेंट पर्सन एंड इफ देयर इज अ गुड कंटेंट इन ईमेल, या उस कंपनी की जरूरत वाली चीज है जिसको आप सर्व करते हो, तो ही फॉरवर्ड इट समवन समझे, तो आपका ईमेल ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ट्रैवल करना चालू कर देता है. सो इट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ रिकॉल क्रिएशन फॉर यू. तो बात करते हैं कि ये सारी चीज होती है, तो व्हाई ईमेल मार्केटिंग. तो ईमेल मार्केटिंग बिकॉज 80% ऑफ द कंटेंट मार्केटर्स यूज ईमेल मार्केटिंग. अगर आज आप ईमेल यूज करते हो तो आप उसमें देखते हो कि आपको बैंक्स, आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज, आपको ओला, आपको उबर, आपको मेक माई ट्रिप, आपको बुक माई शो, मल्टीपल मार्केटर, जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, विल सी लॉट्स ऑफ कंटेंट कमिंग फ्रॉम देम टू यू. आप शायद परचेज नहीं करते हो लेकिन वो रिकॉल क्रिएट करता है. और 80% ऑफ द कंटेंट मार्केटर यूज ईमेल बिकॉज ईमेल इज द चीपेस्ट. ईमेल, आई एम रिपीटिंग, इज वन ऑफ द चीपेस्ट, मास एंड द मेजरेबल एक्टिविटी. मास, cheapest and a measurable activity. दूसरा चीज है 55% ऑफ द कंपनी जनरेट मोर देन 10% ऑफ द सेल्स फ्रॉम द ईमेल. ये वो कंपनी जो सेल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको अपने प्रोडक्ट, जिनको अपने सर्विसेज बहुत लोगों तक की जब पहुंचाना होता है,
और जब आप अपना ईमेल कैंपेन को सेट करते हो तो 55% of companies generate more than 10%. And the best part with email campaign is these people reply back to your email. So there are two way of marketing, push marketing and the pull marketing. जब आप ईमेल करते हो तो आप इसको पुश करते हो, आप भेजते हो, लेकिन जब वो पर्सन आपको रिप्लाई करता है तो दैट इज कॉल्ड पुल. नाउ ही सेड प्लीज सेंड मी प्रपोजल, कॉल मी with me or whatever we talk about. तो इससे ही होता है कि 50% ऑफ द कंपनी जनरेट. अब आपको ये समझना है कि आपके लिए 10% ऑफ सेल्स इंक्वायरी क्या मैटर करती है और वो इंक्वायरी आपके बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करती है. दूसरा चीज है 42% ऑफ द बिजनेस सेल्स ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लीड जनरेशन चैनल. इफ नॉट ईमेल, अगेन आई एम सेइंग, इफ इट्स नॉट ईमेल, then what is an avenue you will use for mass communication? गूगल एडवर्ड महंगा है, फेसबुक कॉस्ट लगता है. ओके, इसके अलावा आपके पास में क्या चैनल है? दूसरा चीज होता है कि ईमेल मार्केटिंग जब आप करते हो और आप जो लीड जनरेट करते हो वो आपकी एक्सक्लूसिव लीड होती है. अगर आप जस्ट डायल पे जाते हो या फिर बाकी के सुलेखा.com पे जाते हो या बाकी के ऐसे कोई भी पोर्टल पे अगर रजिस्टर करते हो, कोई रियल एस्टेट है तो वो आपका मैजिक ब्रिक्स पे चला जाता होगा या notebroker.com पे या जहां पे भी आप जाते हो, जो भी लीड आप उनके थ्रू जनरेट करते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड लीड क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म से आई है तो लीड के ओनर वो है, वो ही लीड मल्टीपल लोगों को शेयर होती है. जब ये लीड मल्टीपल लोगों को शेयर होती है तो उस कस्टमर जिसने लीड जनरेट किया या जिसने इंक्वायरी डाली है उसके पास आपके जैसे 10 लोग और पहुंच जाते हैं. और जब 10 लोग उसके पास और ज्यादा पहुंच जाते हैं तो होता क्या है, आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस में आते हो बिकॉज यू आर नॉट एक्सक्लूसिव. लेकिन वही अगर लीड आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जनरेट होती है तो दिस पर्सन हैज चूजन कि आप उसको अप्रोच करो, तो इससे सेल्स साइकिल जो होता है शॉर्ट हो जाता है. ओके, am I making sense? If I am making sense until now, just put up in the chat box, I'm making sense. So I'm just waiting because, yeah, perfectly all right. So as I said, कई सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे, मैं कभी कुछ चीजों को जनरल क्लियर पे ले रहा हूं. सो एसेंशियली बात ये होती है कि जब इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास में तो व्हाट इज द रीजन ऑफ इग्नोरिंग इट. ओके, तो वी विल डिस्कस अपॉन की कॉमन मिथ और फैक्ट्स के साथ में लोगों को चैलेंज करते हैं. 88% ऑफ मार्केटर सेज ईमेल मार्केटिंग इज ब्रिंगिंग देम अ पॉजिटिव आरओआई. मतलब 12% लोग शायद ऐसे हैं जिनको ईमेल मार्केटिंग से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है, लेकिन वो 12% प्रोबेबली लोग इसलिए हैं क्योंकि दे डोंट नो द वे टू यूज ईमेल मार्केटिंग. ओके, सो ये सेशन में, अगले सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि वो 12% और ये 88% लोगों के बीच में फर्क क्या है. सो 88% पीपल हु फॉलो द एथिक्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग, ओके, विल गेट अ पॉजिटिव आरओआई. ईमेल मार्केटिंग में साथ में ये भी कहा जाता है, पीपल हु आर दिस 88%, दे से इफ आई इन्वेस्ट $1 on email marketing, ROI ग्लोबली है ये, ROI is $42. मतलब 42 times result compared to 1x. तो अगर आप ₹1 खर्चा करते हो तो आप 42 रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करते हो, सेल जनरेट करते हो. डिपेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, अगेन आई एम सेइंग, बट इन जनरली दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच गिव्स यू बेटर ROI. Sorry. Okay. So why email marketing? Because 90% of the email, अगर आपका डेटाबेस सही है, अगर आपका डिलीवरी पार्टनर सही है, तो 90% जो आपने ईमेल भेजे हैं, it will get delivered to a person where you wanted to send, and that too within half hour, within hour, within 2 hours. तो 90% डिलीवरी रेट कोई भी प्लेटफॉर्म की नहीं हो सकती है. सोशल मीडिया पे अगर आप अपना पोस्ट डालते हो तो वो भी आपके सिर्फ 1% ऑफ द ऑडियंस तक का आपका कम्युनिकेशन पहुंचाता है. फोन कॉल अगर आप एक दिन में 90 करते हो तो उसमें से शायद 9 कॉल है जिसके साथ आप एंगेज होते हो, which again comes out to 10%, and the amount of time and effort required is very very high. कुछ लोगों के क्वेश्चंस है हाउ टू गेट टारगेटेड डेटा, वी विल कम ऑन दैट थिंग. पहले मैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग को सेट कर लूं. ओके, दूसरा चीज है, इट्स अ बेस्ट वे टू कनेक्ट एंड रीच. देयर
with whatever my experience of 20 years with working with 900 customer, आज मेरी टीम साइज अराउंड 70 लोगों की है. I'll tell you there is no better way which we have generated. एक तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, लेकिन उस टॉपिक को अभी हम नहीं छेड़ते हैं. अभी हम लोग क्योंकि ईमेल मार्केटिंग पे हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात करें. तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट वे टू कनेक्ट एंड रीच. ईमेल से ज्यादा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता है. आज आप अगर एक आदमी को जॉब पे रखते हो, उसको अगर आप 25,000 रुपए की सैलरी देते हो, आपने एक ही कैलकुलेट करना है कि ये आदमी 25,000 रुपए एक सैलरी देने के बाद में मेरे को कितने अमाउंट्स की लीड जनरेट करता है. शायद वो सेल करता है. तो क्या आप एक आदमी को लेके इन अ एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इन अ एरा ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, ओके, इन अ एरा ऑफ सोशल सेलिंग, आपको सेल्स को रिप्लेसमेंट नहीं है, बट मार्केटिंग कैन बी रिप्लेस्ड विथ ऑल दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. ओके, सो ईमेल हैज अ हायर आरओआई. ईमेल ड्राइव्स कन्वर्जन. जब आप ईमेल भेजो तो एक चीज ध्यान में रखो, उसके अंदर में कन्वर्जन कोड होना चाहिए. उसको हम लोग बोलते हैं कॉल टू एक्शन. जब आप ईमेल भेजो, अगर आपको ये नहीं पता है कि ईमेल पढ़ने के बाद में उस आदमी ने क्या करना है, तो दैट ईमेल कैंपेन विल फेल. So it will fail. So we don't want an email campaign to fail. We want email campaign to deliver the message. और अगर वो आदमी को कुछ चीज लगता है तो he should either call, he should reply back, he should click on the link and do the transaction, या आपका इंक्वायरी फॉर्म करे, या तो ईमेल को डिलीट कर दे. So that is what we are talking about. Email creates a fantastic real recall value across audiences. जब आपकी ईमेल बार बार अलग अलग फॉर्मेट में, एक मैसेज की बात नहीं कर रहा हूं, उस ऑडियंस को जाता है, तो आपको वही ऑडियंस को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन करने का ईमेल. एग्जाम्पल, जो आप रोड पे जाते हो, आप एक होर्डिंग देखते हो. होर्डिंग से आप रोज खरीदते नहीं हो, लेकिन वो होर्डिंग देख के आपके दिमाग में उस ब्रांड का लोगो, उस ब्रांड का प्रोडक्ट रिकॉल क्रिएट कर देता है. सो दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ एन ईमेल मार्केटिंग. यस, उसके अंदर इनोवेशन होना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, उसके अंदर में क्लीनलीनेस होना चाहिए, उसके अंदर में सेलिंग नहीं होना चाहिए. तो काफी सारी चीजें, जो चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा. तो किसी ने पूछा है क्वेश्चन में कि इट डज नॉट गो ऑन स्पैम. यस, अगर आपने सही डिलीवरी पार्टनर को यूज किया है, आपने अगर ईमेल के कंटेंट को सही तरीके से यूज किया है, तो योर मैसेज इज नॉट गोइंग टू स्पैम. सी, स्पैम में जाने के कुछ रीजन होते हैं जिसके ऊपर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं. ओके, आप एक ही मैसेज अगर उठा के 10,000 लोगों को भेजोगे, ओके, तो बट नेचुरल है, जीमेल को पास एक साथ में अगर 10,000 मैसेज जाते हैं एक ही साइज के, एक ही कंटेंट को, तो जीमेल उठा के उसको ब्लैकलिस्ट करेगा. आप लोग भी जीमेल की सर्विस इसलिए यूज करते हो क्योंकि वो आपको क्लीन मेल देता है. अगर वो क्लीन मेल की जगह पे आपको 200 ईमेल फालतू के देगा और 2 ईमेल काम के देगा, तो आप निकल जाओगे. सो इट इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ईमेल पार्टनर टू ब्लॉक अनसॉलिसिटेड ईमेल, बट इट इज ऑल्सो मार्केटिंग एक्सीलेंस कि आप अपने मार्केटिंग कंटेंट को किस तरीके से यूज करते हो, सो दैट योर ईमेल रीचेस टू इनबॉक्स एंड नॉट इनटू द स्पैम बॉक्स. राइट. दूसरा चीज आता है कि एवरेज क्लिक थ्रू रेट ऑफ ईमेल कैंपेन इज 3%. क्लिक थ्रू रेट की हम बात करते हैं, क्या होता है जब आपने अगर अपना ईमेल 1 लाख लोगों को भेजा है, तो मतलब ये होता है क्लिक थ्रू रेट में कि 3,000 लोग उसको मेल को देखते हैं. क्लिक थ्रू रेट और क्लिक इज अ डिफरेंट थिंग. क्लिक थ्रू रेट में ये होता है कि इतने लोगों ने वो ईमेल को देखा है, ओके, 97 लोगों ने ईमेल को बगैर देखे डिलीट कर दिया. अभी ये हमारा आपका भी पैटर्न वैसे ही होता है. हम देखते हैं भेजने वाला क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और हम लोग मोबाइल के ऊपर में होते हैं, तो राइट क्लिक ये करके खट बटन. हम ईमेल डिलीट करने के पहले पूरा ईमेल का कंटेंट नहीं पढ़ते. हम ईमेल के ऑरा से, हम ईमेल के फीलिंग से, हम ईमेल के कम्युनिकेशन से डिसीजन लेते हैं कि हमको ईमेल को पढ़ना है कि डिलीट करना है या ईमेल को छोड़ देना है. कई लोगों के ईमेल अनरीड में जो होते हैं, जैसे एग्जांपल मेरा प्रैक्टिस है, मेरा कोई भी ईमेल अनरीड नहीं होगा, या तो वो रीड होगा, रीड के बाद में डिलीट होगा, या तो उसको रिप्लाई जाएगा, या तो उसको पाठ किया जाएगा, या तो उसको डिलीट करना है. जो ईमेल का मेरे को यूज नहीं उसको मैं डिलीट कर देता हूं. सो दिस डिलीट आफ्टर रीडिंग इज कॉल्ड क्लिक थ्रू रेट. तो अब आपका ईमेल का मैसेज, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव कंटेंट बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है. तो जैसे आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हो, जिसके लिरिक्स, जिसके कॉपी लाइन, जिसके विजुअल ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत स्ट्रॉन्गर है, उन लोगों के ईमेल को, उन लोगों के
प्रोडक्ट को ज्यादा थ्रू आउट मिलता है, ज्यादा कन्वर्जन मिलता है कंपेयर टू एनीवन एल्स। या सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब बात हो रही थी कि ईमेल मार्केटिंग करना है। अब ईमेल मार्केटिंग इज लाइक AK-47 राइफल विथ यू। आप इसको या तो सही तरीके से यूज करो, या तो आप इसको पागलों की तरीके से गोल गोल घुमाना करो, उसमें मरेंगे 3 लोग लेकिन गोली आपकी हजारों बर्बाद हो जाएगी। तो वी विल नाउ डिस्कस अपॉन की कॉमन मिस्टेक्स लोग ईमेल मार्केटिंग के अंदर में क्या करते हैं। आर यू इंटरेस्टेड टू नो दैट? मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं ताकि उतना टाइम मेरे को तो ब्रीदिंग के लिए मिलता है, मैं पानी पी पाता हूं। ओके, perfect, thank you. So common mistakes which people make while doing email marketing. Okay, I give 1 minute to you. Can you put it up in the chat? What do you think are the common mistakes people make before I open up? I give you 1 minute to do that. So let me see हमारा audience को कितनी चीजें पता है। Perfect, perfect. No volume only sale, make all instead, perfect, perfect, perfect. So I think amazing, absolutely right. Okay, so do you want me to skip this slide? क्योंकि जो जो चीजें मैं बोलने आता हूँ तो आपने बोल दिया है। So do you want me to skip this slide or do you want me to continue on a slide? Thank you sir. Okay, so by and large आप लोगों ने जो बोला है परफेक्ट है। So one is important is they buy general and unsolicited leads. कई लोग 2000 रुपए में आपको 5 लाख 25 लाख 2.5 लाख का डेटा बेचना चालू करते हैं। आपको लगता है 2000 में मेरे को ईमेल मिल गई है। ओके, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल डू बिकॉज दे बाय जनरल एंड अनसॉलिसिटेड लीड्स, क्योंकि वो डेटा वो आदमी उठा करके 25,000 लोगों को बेच चुका है। और जब आप ये डेटा को लेते हो और आप इसको मार्केटिंग करते हो, आप अपनी रेपुटेशन को खराब करते हो। इट इज समथिंग, कहीं रोड पे चले हुए हर आदमी को आप रोक रोक के अपना ब्रोशर थाम रहे हो। तो जब हम लोग सिग्नल पे उठते आप देखते हो कि कुछ लोग आते हैं अपना प्रोडक्ट देते हैं, तो वी डोंट हैव अ राइट फीलिंग। हम उन लोगों के लिए सही रिस्पेक्ट जनरेट नहीं करते। जब आपका ईमेल कैंपेन आपका रेपुटेशन नहीं बनाता तो आपका रेपुटेशन खराब कर देता है। सो प्लीज नेवर एवर गो एंड बाय जनरल एंड अनसॉलिसिटेड लीड फ्रॉम एनीवन। आपका डेटा 50 का है, आपका डेटा 100 का है, आपका डेटा 500 का, एब्सोल्युटली ओके, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन दैट, बट डोंट बाय। आपके पास में विजिटिंग कार्ड है, आज आप विजिटिंग कार्ड स्कैनर लेके वो पूरे विजिटिंग कार्ड को डिजिटल कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके वेबसाइट से इंक्वायरी जनरेट होती है, आपके पास में कस्टमर का डेटा आपके टैली में ERP में होगा, वो सारा डेटा को आप यूज करो। बिकॉज पीपल लाइक टू टॉक converse with known people, they don't want to talk to anyone randomly. Okay, तो जितना आपके कंटेंट में, जितना आपके ईमेल में दम होगा, उतना ज्यादा आपका अच्छा मार्केटिंग कैंपेन चलेगा। दूसरा चीज है जनरल डेटाबेस विदाउट कैटेगराइजेशन। आपके पास ईमेल आईडी आ गया और आपने सब ईमेल आईडी को बोला दिस इज माय ईमेल। नो, इट डजंट वर्क फॉर दैट वे। सी योर एम्प्लॉइज वांट टू कम्युनिकेट, वांट टू हियर अ डिफरेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम यू। आपका वेंडर आपसे अलग कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपका रेगुलर कस्टमर आपके साथ अलग कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपका जो पोटेंशियल लीड्स है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका लीड इंक्वायरी का फनल है, वो आपके साथ अलग कम्युनिकेशन करना है। जब आप एक ही चीज का लेके कम्युनिकेशन सबके साथ करते हो तो बॉस दूरदर्शन जैसा हाल हो जाएगा। दूरदर्शन एक टाइम में एक ही चैनल चलाता था और सबको बोलता था ये ही देखो। फिर वहां पे टाटा स्काई आ गया, जिन्होंने बोला आप टाटा स्काई को लगो, एक बार लगा डाला तो लाइक जिंगा लाला। मतलब आप न्यूज देखो, आप एंटरटेनमेंट देखो, आप इंग्लिश मूवी देखो, आप बॉलीवुड देखो, आप ये देखो वो देखो, बिकॉज ही नोस कि मेरा टाटा स्काई को सब्सक्राइब करने वाले हर आदमी, लेकिन हर आदमी को अलग अलग टाइप का कंटेंट चाहिए। सिमिलरली आपको आपका जो ईमेल का डेटा बैंक है, इसको सेग्रीगेट करना होगा। बिकॉज अगर हमने जनरिक रखा तो शायद हम सिर्फ जनरल कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर मैंने अपने वेंडर को या अपने एम्प्लॉय को अपने सेल्स के प्रमोशन के मैसेज भेजा कि लुक वेरी रॉन्ग। अगर मैंने अपने कस्टमर्स को अपना कुछ ऐसा प्रमोशनल मैसेज भेजा जहां पे मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, बिकॉज ही वाज पेइंग यू 10% मोर। सो यू विल हैव टू सेग्रीगेट दिस डेटा इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। वो सेग्रीगेशन करना, यू आर अ बिजनेस ओनर, आप अपना बिजनेस से चलाते, यू नो हाउ इट्स टू बी डन। किसी ने कहा था
People send CC and BCC to all. Absolutely wrong practice. Because इससे एक तो ये होता है जब आप CC करते हो आप अपना डेटा लोगों को एक्सपोज कर देते हो। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अगर मान लो 50 लोगों को 100 लोगों को पैसे भेजना है वो CC उठा के कर देते हैं और उससे हो क्या जाता है कि आपका डेटाबेस एक्सपोज हो गया। यू डोंट वांट टू एक्सपोज योर डेटा। और कल अगर किसी ने लिख दिया दिस इज अ फ्रॉड कंपनी, दे डोंट डू दिस दैट काइंड ऑफ व्हाटएवर इट इज, ओके, नहीं लिखता है वो अच्छी बात है, तो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। BCC इज समथिंग आई डोंट नो, कोई आदमी बुरखे में पहन के आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, कोई आदमी पर्दे के पीछे खड़ा होकर आप नहीं उनको बेच पाओगे, तो प्लीज डोंट यूज BCC एंड CC ओवर देयर। कॉमन मिस्टेक, यू डू ईमेल कैंपेन, यू डोंट मॉनिटर, और आपको लगता है मेरा ईमेल कैंपेन चलता नहीं है। तो जो प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको बताता है कि आपने ईमेल भेजा, इस ईमेल को A/B टेस्टिंग करके कॉन्सेप्ट होता है। उस A/B टेस्टिंग में आप वही आदमी को एक अलग 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 तरीके से भेजते हो, बिकॉज यू डोंट नो दिन में ईमेल कैसे पढ़ते हैं, शाम को कैसे पढ़ते हैं, कभी टेक्स्ट वाला ईमेल चलता है, कभी इमेज वाला वीडियो चलता है, कभी उसमें वीडियो एम्बेड किए तो वो चलता है, तो दे आर मल्टीपल वेज, ओके। सो इफ यू डोंट मॉनिटर योर कैंपेन, इट इज समथिंग लाइक आपने एक सेल्स टीम को हायर कर लिया, बोला जाओ मार्केट में जाओ, आ जाओ, महीने की सैलरी लेके जाओ। I don't think your sales will be effective. In the similar format, your email campaign, email marketing will also not be effective. So you will have to regularly monitor your campaign. And based on your monitoring, जैसे आप सेल्स का रिव्यू करते हो वैसे ईमेल कैंपेन को भी रिव्यू में डालिए, वीकली बेसिस पे, 15 दिन के बेसिस पे, व्हाट एवर यू फील लाइक। रॉन्ग कंटेंट, रॉन्ग सेंडर, रॉन्ग टाइमिंग एंड रॉन्ग डेज। आप संडे के दिन कोई आदमी को कोई चीज बेचने चाहोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू सेल। आप उसको 7 बजे के बाद में शाम को बेचने जाओगे तो शायद, अगर वापस अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग चीजों के ऊपर बात करते हैं, we'll talk about integrating email campaign to our CRM, we'll talk on that। तो रॉन्ग कंटेंट मतलब आपको नहीं पता कौन सा कंटेंट किसको किस वक्त में और किस दिन पे आप भेज रहे हो। अगर आपका ये स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होता है, तो अगर आप मान लो सुबह 7 बजे ईमेल कैंपेन चालू करते हो, आप बोलते हो नहीं नहीं मेरे को ऑफिस जाना है, मैं ईमेल कैंपेन छोड़ के जाता हूं, दिस ईमेल विल नॉट गिव द रिटर्न। बिकॉज सबसे पहले आदमी जब ऑफिस में आता है सबसे पहले अपनी ईमेल चेक करता है, जो काम के मेल है उसको रखता है, जो काम के मेल होते हैं तो उसको डिलीट करता है। तो आई कैन टेल यू B2B के बिजनेसेस ईमेल जो होते हैं 11 बजे के बाद में इफेक्टिव होते हैं, 3 बजे के टाइम पे बहुत इफेक्टिव होते हैं, शाम को 4:30 बजे के टाइम पे इफेक्टिव होते हैं, डिपेंडिंग आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस। तो काफी सारा, देयर इज नो सिंगल फॉर्मूला कि ये करने से ये हो जाता है, ओके। तो यू हैव टू नो योर ऑडियंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बाइंग बिहेवियर, मल्टीपल अदर थिंग्स आर देयर, ओके। तो आपने पूछा व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू ट्रिगर द मेल, वो अपनी चीज के ऊपर सी। अभी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो इतने स्मार्ट है, दे नो कि आशीष डालिया को अगर आप ईमेल भेजोगे तो आशीष डालिया जनरली ये टाइम पे ईमेल भेजता है। तो भले ही आपने मेरे ईमेल को 11 बजे शेड्यूल किया, लेकिन मैं अगर ईमेल 3 बजे देखता हूं तो वो ईमेल को आपके ईमेल को मेरे पास 3 बजे डिलीवरी करेगा। बिकॉज अगर आपको पता होगा तो अभी हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, इन ओके, बिग डेटा, ओके, मार्केटिंग 4.0, डेटा माइनिंग के ऊपर में काम बात कर रहे हैं हम लोग। ये जमाना बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट होने लगा है। अगर आपने देखा होगा रामायण चल रहा है तो रामायण में वो एड्स दिखाई जो पुरानी हुआ करती थी अमूल की, क्योंकि जब मैं वो एड देखता हूं आज 40 साल की उम्र के अंदर में, 45 साल की उम्र में, तो वो मेरे को ट्रिगर करता है कंपेयर टू आज की नई एड, क्योंकि वो एड के साथ मेरा टेस्ट जुड़ा हुआ है। तो यू विल सी कि आप सोचोगे यार ये अभी के जमाने में पुरानी एड क्यों, बट उसकी वजह से जो अमूल का सेल बढ़ा है। तो देयर इज अ डिफरेंट केस स्टडी, वी वोंट टॉक दैट राइट नाउ, क्योंकि कंटेंट के हम लोग थोड़ा चुप जाएंगे उस चीज के, ओके। सो रॉन्ग कंटेंट, सेंडर रॉन्ग टाइम, ये सब चीजें हैं। दूसरा है people use their official email and the domain to do bulk email marketing, biggest mistake, never do that। अगर आपको पता है कि आपको ईमेल मार्केटिंग करना है, तो अभी मेरा कंपनी का नाम है icap.co, डोमेन का नाम है icap.co.in और मेरा ईमेल आईडी है ashish@icap.co.in। जब मेरे को ईमेल कैंपेन करना होगा तो मैं आशीष के नाम से पक्का करूंगा, लेकिन डोमेन icap.co.in नहीं होगा। तो मेरा डोमेन अगर आपने ईमेल देखा होगा तो इट इज कॉल्ड icap.digital, क्योंकि इस डोमेन को मैंने सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज करता हूं। कल अगर मेरा ये ईमेल ब्लॉक हो जाता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को वापस एक डोमेन लेना है, मेरे को शुरू कर देना अपने कैंपेन को, ओके। अगर वो मेरा icap.co.in अगर ब्लॉक हो जाता है, बिलीव मी मैं लाइफ लॉन्ग जीमेल को कभी ईमेल नहीं भेज पाऊंगा,
बिलीव मी लाइफलॉग में अच्छे अच्छे प्रोवाइडर को तो अब मेरा बिजनेस खतरे में आ जाएगा. सो पीपल डू दिस एज अ वेरी बिग मिस्टेक. They use their official email and never use your official email and official domain. Do you agree? If you agree, just type in yes. Okay. तो जो मैंने बात किया, do you think this was new or you were knowing about this? Official email और domain वाली जो मैं बात कर रहा हूँ. You knew about this or this was new to you? If you say you knew about it, just type new. If you say no, didn't knew, तो आप लिखिए no. Fantastic. Wonderful. So best part is I am interacting with one of the very literate email marketing sets of the people. Okay. So आप लोगों के पास success of getting your email campaign work for you is high क्योंकि basic fundamentals clear है. Perfectly all right. So कई सारे लोग प्रॉब्लम ये होता है कि they make very plain email. People आपका मार्केटिंग प्रमोशन प्लेन नहीं हो सकता. टेलीविजन पे आप रेडियो जैसी ऐड नहीं देखना चाहोगे. रेडियो पे आप न्यूज़पेपर टाइप के इश्तिहार नहीं देखना चाहोगे. ओके. ये मुकेश आचार्य ने कुछ लिखा है. ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दैट. सो प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये आपका वापस से ए बी टेस्टिंग है. कभी हो सकता है किसके लिए प्लेन टेक्स्ट चलता है, किसी के लिए प्लेन टेक्स्ट नहीं चलता है, किसी के लिए ग्राफिक्स चलता है, किसी के लिए नहीं चलता है. तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, योर पोजिशनिंग काइंड ऑफ थिंग. कई बार लोग ईमेल मार्केटिंग करने में पीडीएफ फाइल अटैच कर देते हैं. कई बार लोग उसके अंदर पीपीटी डाल देते हैं. कई बार लोग उसके अंदर हेवी इमेज डाल देते हैं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपका ईमेल 750 केबी के ऊपर का अगर है तो आपका ईमेल बाउंस हो जाएगा, आपका ईमेल स्पैम में चला जाएगा. बिकॉज एक तो आप मार्केटिंग कर रहे हो. सो योर ईमेल कैंपेन शुड बी लाइक अ वनीला बट शुड गिव मी अ टेस्ट लाइक अ स्ट्रॉबेरी. तो ये आर्ट है ईमेल मार्केटिंग सक्सेसफुल कैंपेन करने के लिए. दूसरी चीज होती है कि जब कोई लोग ईमेल कैंपेन करते हैं तो वो अपने लैपटॉप से करते हैं. ओके, उनको लगता है कि हर आदमी अपना ईमेल लैपटॉप पे, जीमेल पे चेक करता है. बॉस, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आपका ईमेल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए. मोबाइल पे देखे तो भी अच्छे से दिखना चाहिए, आईपैड पे देखे तो भी अच्छे से दिखे, कंप्यूटर पे देखो तो भी अच्छे से दिखे, और आईपैड और लैपटॉप पे देखो तो भी अच्छे. तो आपने आपके ईमेल कैंपेन को भेजने के पहले ये सारे डिवाइसेस पे टेस्ट करना चाहिए. लेकिन जो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं वो प्लेटफॉर्म वो चीज करके दे देता है. बिकॉज एज अ ह्यूमन वी कैन नॉट ऑटोमेट, बट एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ टेक्नोलॉजी, इट कैन हेल्प यू डू दैट पर्टिकुलर थिंग. मेकिंग सेंस? सॉरी, इसका थोड़ा साइन अप हो गया. ओके. सो सक्सेसफुल ईमेल कैंपेन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? जब आपको एक सक्सेसफुल ईमेल कैंपेन को सेट करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको आपकी खुद की लिस्ट बिल्ड करनी होगी. लिस्ट कैसे बिल्ड करते हो? आपके पास जो पहले का अभी करंट डेटाबेस पड़ा है, चाहे वो आपका ब्रोशर, आपके पास में न्यूज़लेटर पड़े हो, या आपके पास में विजिटिंग कार्ड पड़े हो, या आपके ईमेल्स के ऊपर में एक टेक्नोलॉजी में कल जो आपको सिखाऊंगा, कल हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन लेने वाले. आपने जिस दिन से आपने ईमेल यूज किया उस दिन से आपने शायद जीमेल यूज किया होगा. एक ऐसा टूल मैं कल आप लोगों को बताऊंगा. उस टूल को जब आप अपने जीमेल पे चलाते हो, जीमेल पे आज तक के आपने जितने भी लोगों के साथ कन्वर्सेशन किया वो पूरा आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा 1 घंटे के अंदर में. डू यू थिंक दिस इज अमेजिंग? बिकॉज आपने आपके जीमेल के अंदर में कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, लीड्स, प्रपोजल, इंक्वायरी, इन सब लोगों का डेटा है. बट क्या डू यू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम ईमेल? क्योंकि वो आपके इनबॉक्स में है, वो आपके सेंट आइटम में है, वो आपने मल्टीपल फोल्डर क्रिएट किए, उसके अंदर में डेटा पड़ा हुआ है. बट जीमेल डजंट अलाउ यू टू. तो देयर इज अ थर्ड पार्टी टूल. वो क्या करेगा? आपके जीमेल को रीड करेगा और वहां से ईमेल एक्सट्रैक्ट करेगा. अब दीज आर योर रियल ईमेल बिकॉज दे नो यू. आप उनके साथ कम्युनिकेशन करते आए हुए और दे आर एब्सोल्युटली ओके विथ यू. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड इफ आई टेल यू that list itself will be around 3000 unique email IDs. 3000 यूनिक ईमेल आईडी जिनके साथ आपने कम्युनिकेट किया, लेकिन आप इनको अभी तक ईमेल मार्केटिंग नहीं कर पाए. सो वी विल लर्न हाउ टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा, वी विल लर्न हाउ टू यूज अ प्लेटफॉर्म, एंड वी विल अंडरस्टैंड कि मैंने एक दिन सीखा, कल से मेरा ईमेल कैंपेन सेट हो गया. दैट इज व्हाट इज अ टर्न अराउंड टाइम. आज अगर हम सीखे और उसको अगर हमको आज मैं कुछ बताऊं और वो इंप्लीमेंट ना हो, वो मोटिवेशनल प्रोग्राम रह जाए और इंप्लीमेंटेशन ना हो, तो इसका वैल्यू जीरो हो चुका है. Your science of your knowledge is only when you are able to implement it successfully. Fine. So you'll have to build up your own list.
दूसरा आपको साइन अप फॉर्म लगाना है। साइन अप फॉर्म बोलो, इंक्वायरी फॉर्म बोलो, जहां पे आप आपकी वेबसाइट को इंक्वायरी होता है। अगर आप ब्लॉग लिखते हो तो उसके अंदर साइन अप फॉर्म भेजो, या अगर आप कोई ब्रोशर्स पे देते हो तो ब्रोशर में आप क्यूआर कोड डाल सकते हो, या फिर ब्रोशर पे आप ईमेल डाल सकते हो। तो साइन अप फॉर्म, जनरली साइन अप फॉर्म होता है जहां पे लोग चाहते हैं कि आपके ओके तो डिस्कस एंड टेल अबाउट एंडिंग ऑफ ईमेल, वो हम लोग बात करेंगे उसके सिग्नेचर वगैरह के ऊपर। दूसरा चीज होता है कि आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के, गूगल पे कैंपेन चला के काफी जब लीड जनरेट करते हो तो शायद वो लीड आपके काम की नहीं होती है, ओके उस वक्त में। लेकिन ये आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जब आपके पास एक सोशल मीडिया पे आप कैंपेन चलाते हो, 100 लीड जनरेट करते हो, व्हाट हैपेंस इज ये 100 लीड में से 70% लीड ने बोला हुआ है कि वी हैवंट इंक्वायर्ड ओनली विद। फिर बाकी के 70 लीड में से वो लोगों को आपका प्रोडक्ट तो लेना है, बट दे विल टेक सम टाइम टू टेक द डिसीजन, ओके। सो व्हेन दे टेक अ डिसीजन तो मतलब ये है कि आपको उनको फॉलो अप करते जाना है। लेकिन इन्होंने कम्युनिकेट तो आपको ईमेल के थ्रू किया है, मोबाइल के थ्रू किया है। आप थोड़े दिन तक करोगे, उसके बाद में आप इरिटेट हो जाओगे, वो इरिटेट हो जाएगा और आप फॉलो अप छोड़ देते। बट एट द टाइम जब वो डिसीजन मेकिंग करने वाला होता है, तब तक वो आपको भूल चुका है, आप उसको भूल जाते हो। मेकिंग सेंस? डू यू थिंक मेकिंग सेंस? क्योंकि इनिशियली जब लीड आती है हम बहुत एग्रेसिवली फॉलो अप करते हैं, लेकिन जैसे वो लीड हमको रिस्पॉन्स थोड़ा कम देना चालू करते हैं, हम फॉलो अप छोड़ देते हैं। बट एक स्टेज पे जब वो लीड डिसीजन लेने वाली होती है, तब तक हमारा फॉलो अप छूट जाता है, वो हमको भूल जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग ब्रिजेस अप दैट काइंड ऑफ गैप। कितने फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो हम चीजों पे सब बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि डेटा है तो रोज के रोज ही करते चलो, या हफ्ते के हफ्ते चलो, या महीने में ही चलो। तो देयर इज अ लाइफ स्ट्रेटेजी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी डन। दूसरा चीज है, जो भी आपका डेटा है उसको सेग्रीगेट कर लो। आपको पता है कि आपका एम्प्लॉय का डेटा कौन सा है, आपका एक्स एम्प्लॉय का डेटा कौन सा है, आपका वेंडर का डेटा कौन सा है, आपका कस्टमर का डेटा क्या और नहीं है, तो डेटा को प्लीज आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। क्योंकि डेटा पे लिख के नहीं आता है कि मैं ये हूं, वो डेटा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ सेग्रीगेटिंग द डेटा, और ये भी सारी चीजें सीआरएम करके देती है। दूसरी चीज, प्लीज बी रियल एंड डोंट फेक। डोंट, कई लोगों को मैंने देखा है, नाम मेरा आशीष डालिया, लेकिन जब मैं मेल भेजता हूं तो मैं करीना कपूर के नाम से मेल भेजता हूं, या मैं दिव्या अरोरा के नाम से भेजता हूं। लोगों को लगता है बहुत टेम्पटिंग नाम। प्लीज डोंट डू, इससे रेपुटेशन खराब होती है। क्लाइंट बोलेगा आई वुड लाइक टू टॉक टू दिव्या, और आप बोलोगे कोई दिव्या नहीं है। तो प्लीज डोंट यूज एनी सच काइंड। सो प्लीज बी रियल, डोंट बी फेक। आप जबरदस्ती में किसी को बेच नहीं सकते हो। आप सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म करते चलिए, लेना नहीं लेना उसका खुद का सब्जेक्ट है, वो उसका खुद का डिसीजन है। दूसरी चीज पीपल डू मिस्टेक इज, वो ईमेल भेज देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट डू दे पीपल वांट, कि ये ईमेल पढ़ने के बाद में मैंने क्या करना है। तो देयर शुड बी प्रॉपर कॉल टू एक्शन, कि ईमेल देखने के बाद में आपको ईमेल पे रिप्लाई करे, कॉल करे। आपने बोला मेरा सोशल मीडिया के पेज पे जाओ, या मेरा यूट्यूब को देखो, या मेरा प्रोडक्ट को देखो, तो वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इट इज समथिंग लाइक कि मैं आपको आके बहुत सारा भाषण दे रहा हूं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इससे मैं एक्सपेक्टेशन क्या कर रहा हूं। मेकिंग सेंस? Am I making sense? Am I audible? Yeah, thank you. दूसरा चीज है, एक ईमेल पे एक से ज्यादा एक्शन नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ उसको बोलते हो प्लीज बाय माय प्रोडक्ट, उसके बाद में बोलते हो कॉल, उसके बाद में बोलते हो ईमेल, उसके बाद में बोलते हो मैं सोशल मीडिया भी देखो, उसको बोलते हो मैं वेबसाइट भी देखो। आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। वन मैसेज, वन कम्युनिकेशन एंड वन कॉल टू एक्शन। वी शुड नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। क्या होता है, हमको लगता है हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए, आदमी ये नहीं करेगा तो ये कर लेगा, ये नहीं करेगा तो ये कर लेगा। दैट डजंट हैपन। Please understand there has to be one message, one communication and only one action on that. Okay? दूसरा चीज है, जब कभी भी आप ईमेल कैंपेन करो, पहले ही आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करो कि मैं ये ईमेल कैंपेन किस लिए करना चाहता हूं। क्या मैं इन्फॉर्म करने के लिए करना चाहता हूं? क्या मैं इसको अपने फेसबुक के पेज पे लाइक कराना चाहता हूं? क्या मैं इसको अपना प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं? क्या मैं चाहता हूं ये प्रोडक्ट परचेस कर ले? क्या ये क्लिक को लिख करके अमेजॉन पे? तो आपको आपका कम्युनिकेशन, आपका टारगेट पहले डिफाइन करना होगा, और ये डिफाइन करने के बाद भी आपको ईमेल प्लान करना होगा। दूसरा चीज होता है, देयर इज नो वन वे ऑफ डूइंग द मार्केटिंग। तो ऑलवेज डू ए एंड बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग मतलब कुछ चीज मैं ऐसे करूंगा, कुछ चीज मैं वैसे करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि कौन सी चीज ने मेरे को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ओके, कौन सी चीज ने मेरे को, कौन सा ए कैंपेन ने मेरे को कैसा रिस्पांस दिया, बी कैंपेन ने मेरे को कैसा रिस्पांस दिया। जो कैंपेन मेरे को ज्यादा अच्छा रिस्पांस देता है, अगली बार मेरे को वो कैंपेन को करना है।
तो हो सकता है एक मैसेज में प्लेन टेक्स्ट में डालूं, एक मैसेज में इमेज के साथ में डालूं। अगर मेरे को इमेज अच्छा रिस्पॉन्स देता तो मैंने इमेज भेजना चाहिए। इमेज मेरे को सैटरडे के दिन अच्छा रिस्पॉन्स देता तो मैं सैटरडे के दिन देना चाहिए। इमेज सैटरडे के दिन मेरे को 11 बजे अच्छा रिस्पॉन्स दे तो मेरे को 11 बजे। तो दे आर मल्टीपल वेज। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपका इनोवेशन, यहाँ पर आपका एनालिटिक्स, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन जो अप्रोच होगा वो आपको विनिंग एज देगा। अदरवाइज तो ईमेल मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। तो पॉइंट ये होता है कि आप डिलीवरी किस वक्त, 4W1H है, हाउ व्हाट व्हेन वेयर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो वाला, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट इन माय ओपिनियन ईमेल आर यू गोइंग टू कवर टॉपिक ऑफ ऑप्ट इन मेथड, या ऑप्ट इन मेथड के ऊपर में मैं बात करता हूं। लेट मी जस्ट फिनिश अप विद दिस थिंग। सो हाउ डू यू प्लान योर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन नाउ? ओके, तो जब आप ईमेल मार्केटिंग करो तो आपने किस तरीके के दायरों में अपने कम्युनिकेशन को रखना चाहिए। आपने अपनी कंपनी की न्यूज बतानी चाहिए, आपने अपने प्रोडक्ट के लॉन्चेस बताने चाहिए, आपने ये भी बोलना चाहिए टुडे वी हैव एक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर कस्टमर एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू, बिकॉज़ पीपल लव स्टोरीज। ओके, जब आप बोलते हो कि आज मैंने टाटा ग्रुप कंपनी का ये कस्टमर एक्वायर किया, या आज मैं अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं, या आज मेरे को ये अवार्ड मिला, या आज मेरे को ये रिवॉर्ड मिला, या आज ये कस्टमर ने हमारे साथ साइन अप किया, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। सो योर ईमेल मार्केटिंग इज ओनली मेंट टू बी डूइंग वन थिंग, इट शुड बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। दूसरा चीज है, जब कभी आप ब्लॉग लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, मार्केटिंग के कोई कोलैटरल, तो योर जॉब इज टू गेट कि वो कस्टमर वहां तक पहुंचे। तो आपके ब्लॉग आप आपकी वेबसाइट पे लिखते हो, आप पैसा खर्चा करते हो, टाइम लगाते हो, लेकिन वो ब्लॉग अगर कोई पढ़े नहीं तो मतलब क्या होता है। अब अगर आपके पास में 500 का, 1000 का, 5000 का ईमेल का डेटा बैंक अगर है, तो प्लीज वो ब्लॉग को आप अपने ईमेल में एम्बेड करिए, डालिए। और अगर आपका ईमेल पे 10 पॉइंट है तो सिर्फ 10 पॉइंट डालो, उसको बोलो फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक हियर टू रीड, बिकॉज आप कॉल टू एक्शन करना चाहते हो। आप चाहते हो आपकी वेबसाइट पे चला जाए। अगर आपने यूट्यूब पे कोई प्रोडक्ट डाला हुआ है तो उसको क्लिक करके यूट्यूब पे लेके जाइए। ओके, तो दीज आर द लेवल्स ऑफ द कम्युनिकेशन जो आप लोग करते हो। दूसरा चीज, आपका कस्टमर बोलता है आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड आशीष with your product and with your services, so customer say if you don't mind can you give me a testimonial, he will give you happily testimonial। अब अगर वो टेस्टिमोनियल बनाता है, उसका बढ़िया सा फोटोग्राफ बना करके उसको आप एम्बेड कर सकते हो। सो यू वांट, आप रोज एक दाल खिचड़ी नहीं खा सकते हो, यू वांट डिफरेंट वेराइटीज टू ईट, टू कंज्यूम, बिकॉज आप टेस्ट बढ़ चाहते हो। सिमिलरली आपका कस्टमर रोज आपकी कंपनी न्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, रोज आपके प्रोडक्ट लॉन्चेस में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन चैनल है जो आप क्रिएट कर रहे हो। कभी आप केस स्टडी बनाओ जहां पे आप बोलते हो कि देयर वाज अ कस्टमर, ही वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम, ही अप्रोच्ड अस, हमने उसका प्रोडक्ट को लिया, हमने ये किया और ये हो गया, फाइनली आउटपुट आ गया। तो अगेन अ गुड केस स्टडी, बिकॉज आप चाहते हो ये केस स्टडी लोगों तक पहुंचे, सक्सेस स्टोरी के कस्टमर तक पहुंचे। सीजन के लोग क्या करते हैं, दिवाली के दिन ग्रीटिंग भेज देते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी मकर, किसको पढ़िए, लोग डिलीट करते हैं। उस दिन जो नॉर्मल में 100 मिलाते उस दिन 500 मिलाते। प्लीज डोंट डू दैट। जिसको कोई काम धंधे नहीं है वो सब चीजें करता है। ओके, आप जब प्रोफेशनली चीज कर रहे हो ना, तो आपके पास में और कम्युनिकेशन का, दिवाली का मैसेज विश करके आप कर क्या लोगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आपके पास में इतना अच्छा डेटा पड़ा हुआ है तो लेट्स ट्राई टू यूज इट वेरी इंटेलिजेंटली। अवार्ड्स एंड एक्रीडिएशन, तो ये कुछ तरीके हैं कि हाउ डू यू क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट, क्रिएट अ गुड टॉपिक, कीप 90 to 20, जहां पे 90% आपके ईमेल के अंदर में एजुकेशन होना चाहिए और 10% मार्केटिंग और प्रमोशनल कंटेंट होना चाहिए। एंगेजिंग सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। प्रायोरिटाइज करो आपका कॉल टू एक्शन की, आप क्या कॉल करवाना चाहते हो उस आदमी के थ्रू। कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, आप पूरी कहानी लिखने की कोशिश मत करो। इसके साथ में इमेज अगर आप यूज करते हो तो इमेज को एक प्रॉपर नाम दो। दूसरा चीज है, नीचे में फुटर में अनसब्सक्राइबिंग का ऑप्शन दो। दूसरा चीज है, डोंट क्रिएट स्पैमी सेंडर इंफॉर्मेशन की कुछ भी, जैसे मैंने बोला कि अंकित अरोड़ा और दिव्या गुप्ता और समथिंग लाइक दैट, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आप इमेज के अंदर में कोई फोटो यूज कर रहे हो, कोई डिजाइन यूज कर रहे हो, तो वो डिजाइन का कंटेंट का रिलेवेंस रखो, नहीं तो कंटेंट अलग लोग लिखते हैं, डिजाइन कुछ अलग लिख देते हैं, तो इट डजंट वर्क दैट वे। और दूसरी चीज है, व्हेनेवर यू डू दैट प्लीज सेंड इट टू योरसेल्फ फर्स्ट, रीड इट प्रॉपर्ली, स्पेलिंग, ग्रामर, कलर, फॉन्ट, सब चीजों को टेस्ट करने के बाद में आपको प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग करना है। ओके, कॉमन चैलेंजेस लोगों के क्या होते हैं ईमेल मार्केटिंग जब करते हैं तो, people have a clutter data, हमने बात किया है, they don't know how to clean the clutter, don't know what is this their data और हमारा डेटा कहाँ कहाँ पे पड़ा है। तो इन वन ऑफ द सेशन आई डिस्कस कि आपका डेटा आप ही के पास में पड़ा है
अलग अलग दरवाजों में, अलग अलग खिड़कियों में पड़ा हुआ है. ओके, हाउ टू गेट हेल्पिंग, विल डू दैट. यस सर. जानवी जी, मैं आता हूं वो चीज में, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन द टाइम. विल डिस्कस ऑन दैट आल्सो लास्ट स्लाइड के ऊपर में. तो आपका डेटा बहुत क्लटर है, आपका डेटा अलग अलग खिड़की दरवाजों में पड़ा हुआ है. आप ओके, तो ये नोटबंदी में जिस तरीके से हुआ था कि आपने हर जगह जा जाके ढूंढा कि मेरा नोट क्या है, मेरा नोट क्या है, मेरा नोट, उसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग जब चालू करोगे बॉस, आपको आपके एम्प्लॉइज के, आपके अकाउंट्स के ईमेल में, आपके सेल्स के ईमेल में, आपके एचआर के ईमेल में, आपके इनवॉइस सिस्टम में, आपके मेलिंग में, आपके जीमेल में, आपके विजिटिंग कार्ड में, आपके रिसेप्शन पे, आपके ब्रोशर पे, वी विल डिस्कस. सो देयर आर 20 प्लेसेस वेयर योर ईमेल्स आर देयर राइट नाउ. विल डिस्कस ऑन दैट कि ये 20 जगह कौन सी है और कहां से आप वो ईमेल को कैसे निकाले और सेग्रीगेट करें. डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. सब कुछ है मेरे पास में, बट मेरे को यही नहीं पता चालू कहां से करना है. ओके, सो वी विल टीच यू वेयर टू स्टार्ट. टेक्नोलॉजी क्या, टेक्नोलॉजी क्या होती है? मेरे को तो आज तक यही पता था कि मैं 2 में सबको डाल दूं, सीसी में सबको डाल दूं, या तो बीसीसी में सबको डाल दूं. तो ईमेल तो है मेरे पास, और मैं जब डालता हूं तो लोग, आप ही ने बोला कि मैं बीसीसी मत करो, तो करूं क्या? तो वी विल टीच यू व्हाट इज अ गुड टेक्नोलॉजी टू एंश्योर दैट यू कैन डिलीवर योर ईमेल टू 10,000 पीपल ऑन अ गो. डेटा माइनिंग एंड मैनेजमेंट. आप अगर अपने डेटा को माइन नहीं करते हो, माइनिंग का मतलब ये होता है सेग्रीगेट नहीं करते हो, कितना डेटा आपका डेड है, कितना डेटा लाइव है, अगर आप वो डेटा को प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट नहीं करते हो, इस डेटा के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है? डेटा के साथ रिलेशनशिप का मतलब है आपके पास एक ईमेल आईडी है, वो शायद आपका कस्टमर का है, वो कस्टमर के एम्प्लॉय का है, या वो कस्टमर के ओनर का है. तो वो सारी तरीके की हम चीजों की बातचीत करते हैं चीज में. पेशेंस इज अ किंग. आपने ईमेल भेजा, आप बोलोगे मेरे को कल रिप्लाई नहीं आया, मैं कल से दुकानदारी बंद कर रहा हूं, नहीं होता ऐसा. सो यू विल हैव टू कीप डूइंग अप द कैंपेन, बिकॉज आपने सेल्स पर्सन को जब पहले दिन लिया था, उसको पहला सेल करने में 3 महीने लगा था. सिमिलरली आपको आपके ईमेल कैंपेन को भी सेट करने में, क्योंकि लोग डेस्परेट तो नहीं है ना कि आपका ईमेल आएगा और टूट पड़ेंगे एकदम से कि सर आ जाओ मेरे को भेज दो. सो यू पेशेंस इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी क्रिटिकल की ओवर दियर. एवरीथिंग एट वन गो करने की बिल्कुल कोशिश मत करो. ओके, कि मेरे को आज सेल भी करना है, मेरे को कंपनी का भी इंट्रो भेजना है, मेरे को ये भी बोलना है. डोंट डू दैट. वन ईमेल, वन कम्युनिकेशन. आपका कंटेंट और विजुअल क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्गर चाहिए, क्योंकि आप नजर अगर पड़ी और वो वाव निकला तो आपका सेल हुआ. तो वही एक कस्टमर के पास जो आपका कम्युनिकेशन जा रहा है, शायद वो 1,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का कस्टमर हो सकता है, तो जीरो वैल्यू. सिर्फ ये आपका कंटेंट, क्रिएटिव, टाइमिंग, डे, ये सब चीजें मैटर करेगी इसके अंदर में. सो बात ये सारी चीज होगी. अब बात हम करते हैं, लेट्स गेट रियल एंड गोइंग. सारी चीजें समझ में. डू यू थिंक दिस सेशन मेड अ सेंस टू यू ऑल? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक टुडे यू आर रेडी नाउ टू स्टार्ट विथ योर ओन ईमेल कैंपेन? So do you think this investment of 1 hour was worth for you all? Wonderful. So I move on to the next thing. So this is again a knowledge. Okay, now let's cook this knowledge. क्योंकि ये रेसिपी मैंने बताई है, अब ये रेसिपी को हम बात कर रहे हैं कि इस रेसिपी को अब कुकिंग कैसे किया जाए. सो हियर कम्स अ कुकिंग. ओके, कल दैट इज 25th of May 11 AM for 2 hours I am going to take up a practical session. आज का कॉन्सेप्ट ये था कि आई वांटेड टू टेल यू कि ईमेल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है. इफ यू ऑल थिंक कि ये सारी चीजें, तो किसी ने बोला नॉट रियली अंडरस्टैंड द वेरियस न्यूसेंसेस, आई माइट प्रोवाइड, आई एम नॉट श्योर. सुरेश जी आप क्या बोल रहे हो? फाइन. सो आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग कि आपने आज जो चीज सीखा, अगर आप चाहते हो ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है, तो आज सेशन, कल 11 बजे हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, जहां पे वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द लाइव डेमो एंड सेटअप ऑफ ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, जहां पे आई विल सेट अप एन ईमेल कैंपेन इन फ्रंट ऑफ यू. Video of the training will be made available to you for further references. ओके, कि आपको वही चीज अगर बार बार ध्यान करना है. ओके, आज का सेशन का भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा. उसके अलावा ये जो सेशन होगा कि आपको जो मैं कल सिखाऊंगा, आई विल टीच यू कि कौन सा सॉफ्टवेयर हमको यूज करना है, उस पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, अपने ईमेल को माइग्रेट कैसे करना है, ईमेल को रिलेशनशिप कैसे लगाना है, उसके अंदर में ईमेल डिजाइनिंग कैसा करना है. ओके, ये सारी चीजों पे बात है. सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग फॉर ईमेल डे, मैंने जैसे आपको बताया कि आई विल गिव यू अ टूल जो आपके जीमेल के अंदर से पूरा ईमेल एक्सट्रैक्ट कर देगा और आपको यूनिक ईमेल आईडी दे देगा.
तो दैट इज अ गोल्ड माइन। ओके, दूसरी चीज है कि वो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर है। ओके, तो आपको सर वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी ऑन दैट। सी अभी राइट नाउ लेट्स फोकस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये चीजों को, ईमेल आपका पुराना ईमेल है तो यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ईमेल डेड है कि लाइव है। डोंट डू द ब्लास्ट अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं। दूसरा चीज विल टीच यू हाउ टू ब्लास्ट एन ईमेल, और ये सारी चीजें आप लोगों को कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। सो विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल नॉलेज, okay, so tools what I am talking to you is a chargeable, sorry, non chargeable, but अगर आप एक लिमिट के बाद में जाते हो तो यू हैव एन ऑप्शन। जैसे मैं एक टूल आपको सिखाऊंगा जो आपको हर महीने 20,000 ईमेल फ्री में भेजने का ऑप्शन देता है। वेरी गुड नंबर, यू कैन हैव योर 2000 डेटाबेस अपलोडेड। दूसरा एक टूल मैं आपको ये सिखाऊंगा जहां पे आप अपना अनलिमिटेड डोमेन ईमेल डालो और उसके ऊपर में आप 7,000 ईमेल महीने के फ्री में डालो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन आपको 7,000 के अलावा चाहिए कि मेरे को 60,000 भेजना है, मेरे को 1 लाख भेजना है, तो यस देयर आर चार्जेस एंड दिस आर नॉट माय चार्जेस, वो प्लेटफॉर्म को देना होगा बिकॉज दैट प्लेटफॉर्म आल्सो एक्सपेक्ट्स कि वो भी अपना डेवलपमेंट करे। बट इनिशियल स्टेजेस पे देयर इज नथिंग चार्जेबल टू यू। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कि ईमेल टेम्पलेट डिजाइन कैसे करें, उसका रोड मैप किस तरीके से होगा। किसने पूछा? यस, कल का जो प्रोग्राम होगा उसका फीस है। ओके, उसके अंदर में हम लोग लाइव 2 घंटे के लिए पूरी टेक्नोलॉजीज, टूल्स से स्टेप बाय, तो टुमारो आई विल टेक द एंटायर प्रैक्टिकल। तो आज जो मैं आपके साथ में, सो एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे वाज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ईमेल मार्केटिंग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम सोचेंगे हमको करना है कि नहीं करना है। Okay, and we had also kept very nominal charge. I think it's 1,000 rupees or something. So once the session is over, Gunjan, if you can just put up the link. Okay, once the session is over, I'll send you an SMS link. आप join करिए. Okay, and then you can join the entire session. Because ये सारी चीज को सीखने के लिए मेरे को 3 महीने लगे थे, जो मैं आपको 1 घंटा 2 घंटे के अंदर में सिखाने वाला हूँ। दूसरा चीज हम इसमें बात करेंगे कि आपकी जो ईमेल की लिस्ट है, वो ईमेल की लिस्ट को आप इंपोर्ट कैसे करोगे, और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा। इंपोर्ट जब आप करोगे तो इसके ग्रुप कैसे क्रिएट करें कि ये कस्टमर का डेटा है, ये मेरा जीमेल का डेटा है, ये मेरा फैमिली का डेटा है, ये मेरे एम्प्लॉइज का डेटा है, या ये मेरे वेंडर्स का डेटा है, या ये मेरे एक्स कस्टमर का डेटा है, ये मेरा प्रोफेशनल डेटा है, व्हाटएवर। और बेस्ट पार्ट क्या होता है, अगर आपका एक ही ईमेल 5 अलग अलग रिलेशनशिप में है तो ये ईमेल को 5 अलग अलग रिलेशन लगेगा। कल अगर आपका एक कस्टमर वेंडर भी है और आपका कस्टमर भी है, तो इसको आप जब वेंडर का मेल भेजोगे तो भी जाएगा, कस्टमर का मेल भी जाएगा। सो एक ही ईमेल को मल्टीपल टैगिंग लग जाती है। ओके, दूसरा हम इसमें बात करेंगे कि ईमेल कैंपेन को मॉनिटर कैसे किया जाए, कि जब आप ईमेल भेजते हो तो उसका मॉनिटरिंग किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में हम लोग एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाएंगे, और उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में यू विल ऑल बी द पार्ट ऑफ इट, सो दैट वी कैन हेल्प यू एड्रेस योर क्वेरीज अगले 1 हफ्ते तक के, कि जब आप एग्जीक्यूट करना चालू हो कि मेरे को ये चैलेंज है, मेरे को ये चैलेंज है, तो वी विल हेल्प यू डू दैट। ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न दैट 1,000 रुपीज, ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर कि आप ये टेक्नोलॉजीज को यूज करो। मोदी जी ने यही बोला है कि बी लोकल एंड वोकल ऑल्सो, सो वी वांट यू ऑल टू टेक केयर ऑफ दिस। ओके, दूसरी चीज है अंडरस्टैंड द गुड एंड द बैड प्रैक्टिसेस व्हाइल यू एग्जीक्यूट अ कैंपेन। तो हम बात करेंगे कुछ गुड कैंपेन क्या होते हैं, कुछ बैड कैंपेन क्या होते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आज आपका सेशन हुआ है, कल ही 11 बजे ये सेशन आपका चालू हो जाएगा। Okay, and then there will be a community of all these particular people who will be hand-holded for another 1 week through a WhatsApp group. कई लोगों के जो common questions आते हैं, तो we will help you do this thing. तो अभी आपको जो गुंजन ने एक लिंक जो भेजा हुआ है, you can click on that particular link, and once you click on that link, you have an option of paying. Once you pay for that, आपको कल के email की Zoom link आ जाएगी, which is going to be very very private. Yeah. So today's session, take an example, was attended by 130 people. Okay, so people who are keen on implementing email marketing into their organization at their personal level, at their professional level. अब ये प्रोग्राम शायद आप सेल्स मैनेजर हो कंपनी में तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी में आप तब तक ही रिलेवेंट हो तब तक के जब आप कंपनी को रिटर्न देते हो। अगर आपने अपनी कंपनी को रिटर्न देना अगर बंद कर दिया तो कंपनी के लिए आप भी रिलेवेंट हो जाओगे। तो हो सकता है आप कंपनी में जॉब करो, ये ईमेल सॉफ्टवेयर को यूज करो, आपके डेटाबेस को आप अपने लेवल पे मार्केटिंग करो। कंपनी आपको ये नहीं पूछती है कि आपने डेटा कहां से लेके आया, कंपनी एट द एंड ऑफ द यही पूछती है कि धंधा कितना हुआ। यस, थैंक यू वेरी मच। सो आई विल जस्ट कम डाउन
close down on my PPT and we will open up the discussion over here. So I want you all to open up the. So had I been making a logical sense for today's session, do you think आज का session आप लोगों के लिए fruitful था? So you can put up the things onto your chat session and then we'll take it one by one. So people who want to speak, who have a query, okay, please raise your voice. Gunjan from my office with my own name itself, वही आप लोगों को unmute करेगी and then we can speak on that. So कल के सेशन में जयंत जी आपने पूछा है what is the price? It's 1000 rupees. और ये 1000 में आपको सॉफ्टवेयर पे फ्री अकाउंट क्रिएट होगा, ईमेल मार्केटिंग कैसे सेटअप करते हुए आएगा, टेक्निकल नो हाउ आएगा. ये सॉफ्टवेयर सीखने की जो कीमत which generally people pay is into 40-50,000 rupees. इसके लिए अगर आपको ईमेल मार्केटिंग के अगर एक आदमी को हायर करोगे, वो आदमी आपको 35-40-50,000 रुपए तक का चार्ज करेगा. बट आई टेल यू, यू एज अ सिंगल ओनर एंटरप्रेन्योर, ओके, आप ये पूरी से आज अगर ये सेशन को 130 लोगों ने ज्वाइन किया है, आई हैव नॉट कॉल्ड अप एनीवन, ये पूरा का पूरा सिर्फ ईमेल मार्केटिंग की वजह से हुआ है. So someone has asked, there are so many options for the payment. Gunjan, what you do is you only send क्योंकि वो हमारे बाकी के सेशन की भी उसके अंदर में डिटेलिंग है. गुंजन विल शेयर विथ यू अ डिटेल ऑफ वन लिंक जहां पे सिर्फ पेमेंट गेटवे का ही है और वो एक एक करके. तो हम लोग ये पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव हम लोगों का यही है कि हम आप लोगों को अलग अलग जो डिजिटल मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी पे ट्रेन सिर्फ ज्ञान नहीं बांटना चाहते. वी वांट यू टू स्टार्ट यूजिंग इट. उसके बाद का सेशन वो होगा जहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाएंगे विदाउट. और ये मेरे पूरे जितने भी सेशन है, these are for those people जो टेक्निकल नहीं है बट दे वांट टू एडॉप्ट द टेक्नोलॉजीज. तो अभी मैं अनम्यूट करता हूं आप लोगों को, ओके, एंड आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग कि आप अपने आप को, मैं आपको अनम्यूट का प्रोविजन दिया, तो जिन जिन लोगों को जो जो क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क मी क्वेश्चन एंड then you can mute and then I'll try to answer it up. So we will open it for another 15 minutes. बाकी का हम लोग कल बाकी में और डिटेल में बात करेंगे. What opt-in process special tomorrow you are going to take? सर एक एक जन पूछ सकते हो. या हेलो. हाँ सर, पूछो आपको क्वेश्चन. हाँ जी सर, कल जो ऑप्ट-इन प्रोसेस का आप जो लेने वाले हैं उसमें हाउ मच परसेंटेज गारंटी की, इतने सपोज 10,000 लोगों को मैंने हिट किया हूं तो 7,000 पीपल लोगों ने ऑप्ट-इन किया है मेरा ईमेल आईडी बेसिकली. क्या स्पेशल प्रोसेस? ऑप्टिंग का थोड़ा लॉजिक अलग होता है. ऑप्टिंग का लॉजिक ये होता है जहाँ पे पीपल ऑप्ट करते हैं कि आपने कोई ईमेल भेजिए, वो आपके ब्लॉग के साथ में, आपके सोशल मीडिया कैंपेन के साथ में होता है. आप जो बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो कि कितने लोगों को मेरा मेल डिलीवरी होगा. ओके, आपके ईमेल मान लो अगर आपने 1 लाख है तो पहले तो उन लोगों को तो मेल जाएगा नहीं जो बाउंस हो चुके हैं, अनसब्सक्राइब हो जाएंगे वो लोग. उसके बाद में आपका ईमेल का जो रेशियो होता है ये धीरे धीरे बिल्ड होता है आपका रेपुटेशन के साथ में कि कितने लोग ये ईमेल को रिसीव करना चाहते हैं और कितने लोग आपके साथ में करते हैं. ईमेल प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी डिलीवरी 80% तक 90% तक लोगों को करवा के देता है. और इसमें मैटर करता है आपका डोमेन, आप कौन सा यूज कर रहे हो. आप ईमेल यूज कर, तो इसमें डोमेन की रेपुटेशन, आपकी ईमेल की रेपुटेशन, आपकी कंटेंट की रेपुटेशन, आप जिस ईमेल सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, काफी सारे ऐसे अलग अलग कम्युनिकेशन आते हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है. तो मुझे चाहिए आपका स्पेशल सपोर्ट. सो एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू सेंड मेल? So there is nothing like best time and bad time example. Because सर ये सब लोगों ने अपने आप को, आई एम म्यूटिंग एवरीवन, आप अपने आप को वापस से अनम्यूट करिएगा. एंड ओनली रिक्वेस्ट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल अदर पीपल, आप अगर अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ के अपने आप को वापस से म्यूट करिएगा. हेलो. यस सर. हाँ जी, जिसको क्वेश्चन पूछे अपने आप को एक टाइम पे एक जन अपने आप को अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछिए. So we are here for another 5-10 minutes and then we will take up the session tomorrow. Yes sir. आशीष जी. हाँ जयंत जी बोलिए. आशीष जी, ये कल के प्रोग्राम का कोई लिंक यदि मुझे देते हो तो मेरा जो एक बिजनेस ग्रुप है, लॉयंस क्लब का बिजनेस ग्रुप है, इसमें मैं इसको पोस्ट करता हूँ. सर आपको लिंक आ जाएगी थोड़ी देर बाद में. आपने अगर रजिस्टर किया तो आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू आपको ईमेल पे भी लिंक आ जाएगी. अदरवाइज अगर आपने चैट विंडो देखा होगा तो वहां पे ऑलरेडी लिंक भेजी गई है. गुंजन एक बार तुम और लिंक भेज दो.
मतलब वो मुझे ऐसा लिंक चाहिए जिसके में कुछ इंफॉर्मेशन हो, सो दैट आई कैन पोस्ट टू द ऑलमोस्ट 250 पीपल। तो इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो मेल आया होगा जयंत जी, उसके अंदर में पूरा इंफॉर्मेशन है, वो आज के इसका था, लेकिन जो लर्निंग वगैरह का जो सेशन है उसका भी लिंक का डिटेल उसके अंदर में आ जाएगा। ओके, बट आई वुड रिक्वेस्ट जिन लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया वही अगर करे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि उसके लिए 200 लोग सब्सक्राइब करें, ओके, गुड 40 50 60 पीपल आर गुड इनफ, लेकिन जो लोग यूज कर पाए उन लोगों ने करना चाहिए। सीआरएम इंटीग्रेशन का क्या होगा, क्या कंसेप्ट कवर करने वाले हैं? सीआरएम इंटीग्रेशन विद लीड मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग। सी, ये जो सॉफ्टवेयर की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये आपका सिर्फ ईमेल के सीआरएम के लिए है, जहाँ पे आपका जो ईमेल का डेटाबेस है वो आप ईमेल के डेटाबेस को मल्टीपल ग्रुप बना के उसके साथ में डाल सकते हो। इट्स नॉट अ सीआरएम, ओके, ये आपका ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपके डेटाबेस के साथ जो रिलेशनशिप आप उसको ईमेल के साथ में बिल्टअप कर सकते हो। दूसरे कई सारे जो सीआरएम होते हैं कि आशीष डालिया क्या है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, किस सिटी से, वो आपको एक अलग ईमेल के साथ में, वो अलग सीआरएम की, हम सीआरएम की बात नहीं कर रहे, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। So suppose if I'm using Salesforce CRM for my company and in a month we are running 4 to 5 campaign, है ना, तो उसका जो लीड जनरेशन हो रहा है, उसका जो ओपन रेट का डाटा आ रहा है या लीड का आ रहा है, how automatically it integrates in my sales team can manage? तो वो आपको ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको डाउनलोड करके ही उसको एक्सेल से अपलोड करना पड़ेगा, बिकॉज जब दो अलग अलग एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो इसमें कई बार वो कोलैबोरेशन मुश्किल हो जाता है। Okay, sir. हाँ जी। So do you have any other questions? So Gunjan will be sending you a list of link of the place from where you can subscribe for tomorrow's program. I have a question. And we will also send you an SMS link. Yes, sir, 8 minutes. So we'll also send you an SMS link of this. So our objective, as I said, we want you to start growing your businesses using email marketing as a thing. उसके बाद में कल हम लोगों का WhatsApp का session था, which was attended by 90 odd people. Okay, and these people started using it up. Okay, तो हम ये अलग अलग टूल्स के साथ में बात करने वाले हैं। हाँ जी सर, you had some question. Yeah, Ashish ji, when I wrote, see, you have explained to us all the various facets of emailing. What are the do's and don'ts? What I meant was, I've understood, but to implement, I need help. And then you said that you're having a session tomorrow. My another question is, when you're setting up an email marketing campaign, what is it necessary that the call to action has to be linked to our site, or there are any other easier ways to do it? See, call to action अगर आपकी ईमेल के अंदर में नहीं होगा, ओके, अगर आदमी रिप्लाई भी करता है तो वो भी कॉल टू एक्शन नहीं है। बट जनरली कॉल टू एक्शन जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। अगर मेरा ईमेल आया होगा तो यू विल सी, सो मोस्ट ऑफ दिस पीपल हैव सब्सक्राइब फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईमेल का लिंक। तो अगर आप देखोगे उसमें रजिस्टर नाउ, ये फ्री वेबिनार या फिर ऊपर में बैनर, वो सब चीजों का कंपोजिशन सेट होना बहुत जरूरी होता है। तो वो चीजों के ऊपर में हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। सो आर यू फ्रॉम Mahatriya Infinitism? No, actually I follow Mahatriya. I'm from Chennai. That's wonderful. Right. So I follow Mahatriya as well. थोड़े दिन तक का मेरा WhatsApp DP was also TAT, this and that. Okay, nice. Yes sir. सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे Zoom में जैसे मैं वेबिनार लॉन्च करता हूँ, हेलो, हाँ जी, तो उसमें जो मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका जो ईमेल आईडी है, अगेन माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, वो Zoom पे ऑप्ट इन होते हैं कि मेरे मेल आईडी को ऑप्ट इन करते हैं? वो लोग Zoom को ऑप्ट इन करते हैं और वो ऑप्ट इन डेटा को आपको डाउनलोड करके फिर आपके डेटा में ये करना पड़ेगा। तो जैसे जितने भी लोग अभी मेरे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, दे विल ऑल गो इनटू माय आशीष वर्कशॉप वेबिनार। तो अलग अलग जो पहले दिन था 675 पीपल अटेंडेड दैट, देन देयर वाज अनदर डे वेयरिंग 250 अटेंडेड, 75 पीपल अटेंडेड, 90 पीपल अटेंडेड। तो ये सबको सिंक्रोनाइज हो जाए बिकॉज़ दिस पीपल हैड बीन एक्सेसिंग मी। सो दिस पीपल को जब तक मैं नॉलेज दूंगा दे विल नॉट हैव एनी इशू, लेकिन जिस दिन मैं सेलिंग करना चालू करूंगा, ओनली सेलिंग, so that is one of the things which we should try to avoid on that. Okay. Yeah. Hi, Ashish, does this email CRM personalize the emails? Yes, it does personalize. अगर आपके ईमेल के अंदर में एक कॉलम है जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ईमेल है, कंपनी का नाम है, डेजिग्नेशन है, and if you want to do a personalization email saying that dear Ashish Dalia, okay, it was pleasure meeting you yesterday at so and so session, okay, I follow iKnowledge Factory Private Limited, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो उसके साथ में। For the entire database. Yes sir. अगर आपके एक चीज समझना जरूरी है, इट वर्क्स ऑन अ लॉजिक। अगर आपके नाम में अगर आपने आशीष डालिया की जगह पे मिस्टर आशीष डालिया या
मैं मान लो लायंस क्लब का मेंबर, अगर आपने लायन आशीष डाला तो मेरे नाम में डियर लायन आशीष डाल तो दैट माइट लुक बैड. तो बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ये चीज को प्रॉपर तरीके से चैलेंज करके अगर डालोगे तो यस इट गिव्स यू एन ऑप्शन ऑफ पर्सनलाइजेशन. Okay. Yeah. So thank you very much. So if you don't have any particular question, then we can close up in that. So Thank you do very much. subscribe, and we look forward for the session tomorrow. जहाँ पे we want you to do an onboarding journey and learn with us, and we all want you to grow your businesses as well. Ashish, one last question from you. Sir, Since you पूछिए, कोई mentioned, दिक्कत नहीं, I am any which ways here. Yeah. yeah, you had mentioned that you had a WhatsApp marketing class. So you do WhatsApp marketing as well? So I don't do WhatsApp marketing. I had taught people yesterday in a session ki how you can use WhatsApp also as a tool for marketing, for communicating. Okay, so your businesses. So one of the platform is an email. Email is a bulk platform where you can go and shoot out an email to 10,000 people. But WhatsApp is very personalized, where you, with 1,000 people, 500 people, 2,000 people, how you can be adhere to the WhatsApp etiquettes and still do a lot of businesses. No, no. Do you teach that? Do you teach With, that? yes, I taught that. So Oh. yesterday it was attended by almost like 90 people. Oh, lovely. Right. And it was again a very practical session. Right. Thank So you. I think One more Sunil ji, question. you were there. One more Sunil question. ji, Last आप अपना question. share करोगे experience? How was the experience of yesterday? Sir, it's fantastic experience of WhatsApp marketing, and so many things we learned and implemented even also. And in Wonderful. WhatsApp group, we got support even also. Perfect. Thank you very much for that. Thank you. And last question, sir, about tomorrow's session. Yes, sir. Sir, I have 5,000, suppose example, I have 5,000 email IDs, valid email IDs. And not from any email campaign software or something. So from my email ID, I want to send them. So how I create a spam-free mail? How to test it is a 0 or 10%? So supposingly you have 5,000 email and you want to send it from your email ID. Your email ID is take like rajesh.patil.xyz.com. Yeah, So you can do that. Or you can do that, but it will not use the SMTP. It will still use a third party. जिसका मैं कल आपको ट्रेनिंग दूंगा ना, उसका SMTP होगा, तो black labeling नहीं होगा. If provided these people knows you. If people mark your email ID as a spam, then it's a big challenge. So I always recommend कि पहली बार ये जब करो तो don't do that. Always create a lookalike email ID, okay, and then try to send it up from there, because you don't know वो लोग आपके साथ में किस तरीके का relationship maintain करते हैं and what kind of a response they want it to be there. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you very much. See you tomorrow. Thank you very much. So we look forward to see you tomorrow. We start at 11 a.m. Sure. Thank you. So we officially close the meeting. Thank you.